Very good evening to all, and sorry because I stuck somewhere and there was some technical glitch also. So, very quickly, I am sharing that today. Yes. So, today, block 4, and that block 4 is talks about learning environment for preschool children. So, what we will discuss that importance of school plants for preschool, essential equipment and facilities for learning, and the measures to be taken in preschool for ensuring the safety of children. So basically, this is unit is focused on the environment and the safety of the child in preschool. Which type of environment should be there? Tree plantation, gardening, and all that all should be there for the proper growth and development of the child. So, school plant. The school plant of preschool must have an environment that foster holistic development of the children and facilitate learning. The school plant may include, beside spacious playground, garden, spacious building to meet the requirement of young children. सो बेसिकली यहाँ पर स्कूल को एक प्लांट के रूप में देखा गया है और इसमें जो जो चीज़ होनी चाहिए प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए, प्ले ग्राउंड, गार्डन होना चाहिए, है ना, एंड स्पेशियस बिल्डिंग होनी चाहिए. So the school plant is to be based on the following principles: efficiency and unity, interfunctional coordination, curriculum adequacy, adaptability, economy, safety and well-being and beauty. मीन्स जितने भी हमारे स्कूल स्ट्रक्चर है उसमें the school plant should be assembled in a manner that will provide efficient school management and convenience of children and other who use it. Then interfunctional means each unit of plant should be well planned, keeping in view its specific purpose. Curriculum adequacy, the plant must be planned to provide facilities necessary for efficient, effective operation of various activities. A school plant should be planned for future adaptation to meet changing requirement. जैसे आपने देखा होगा बच्चों से एक फैमिली प्लांट बनवाते हैं जिसमें 2 लीफ होती है मदर एंड फादर की, उसमें फर्दर चिल्ड्रंस होते हैं. तो स्कूल प्लान भी उसी तरह से है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ब्यूटीफुल हो, जो लेआउट है वो प्रॉपर अट्रैक्टिव हो ताकि बच्चे फील करें कि यस आई एम इन ए गुड एनवायरनमेंट, आई एम एट गुड प्लेस. लर्निंग एनवायरनमेंट से आप समझते हैं कि जहाँ, देखिए मैंने डे 1 में कहा था कि देयर आर 4 थंब फॉर गुड लर्निंग. पढ़ने वाला पढ़ने को राजी हो, पढ़ाने वाला पढ़ाने को राजी हो, और पढ़ने पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर प्लेस दैट इज नॉन एज लर्निंग एनवायरनमेंट, और पढ़ाने वाले को पढ़ाने की कला मीन्स टीचिंग प्रैक्टिसेस
तो यहाँ लर्निंग एनवायरनमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड so that the child optimal development take place. The child development in 4 domains: social, physical, cognitive, and emotional is sustained, extended, and enhanced primarily through an environment with purposeful activities and play. The main role of teacher and other care giver is to: first is organize the environment and establish a climate for positive social interaction. यानी कि जो भी प्लेस है, लर्निंग एनवायरनमेंट मीन्स प्ले स्कूल और स्कूल, वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस एस्टेब्लिश किए जा सकें. सेट रूटीन्स फॉर एक्टिव लर्निंग एंड प्लान एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन. बच्चे वहाँ पर अनुभव गेन कर सकें. एनकरेज चिल्ड्रन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिफ्लेक्शन. बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी वो डेवलप होनी चाहिए. Observe and interpret the action of each child in terms of the developmental principles. So यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट हो ताकि इंडिविजुअल चाइल्ड को फोकस करके उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके. वो कहलाता है आपका लर्निंग एनवायरनमेंट. The creation of learning environment is guided by the following principles. एक अच्छे learning environment के लिए ये principles हो सकते हैं. First, the various domain of child development. Child development means physical, social, emotional, and cognitive are closely related. Hence, creating a learning environment that favors only one domain is not enough. ऐसा ना हो कि ऐसा learning environment कहें जहाँ पे सिर्फ बच्चे का cognitive development हो रहा हो. मीन्स सारी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए: फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव. डेवलपमेंट प्रोसीड्स टुवर्ड्स ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, बट एवरी चाइल्ड डेवलप ए यूनिक. यू नो द एवरी चाइल्ड इज यूनिक. सो टीचिंग मेथड, टीचिंग प्रैक्टिस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट में ऐसा हो कि हर बच्चे पर फोकस किया जा सके. लर्निंग इज टू बी बेस्ड एंड activities so that children can construct their own understanding of the social and physical world around them. Development and learning occurs in social and cultural context. Means learning environment ऐसा हो जहाँ पे बच्चे social and physical जो चीज़ें हैं उनको समझ सकें और जो अपने कल्चरल हेरिटेज हैं उनको भी जान सकें. जो आपके इथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, फेथ्स हैं, उनको भी जान सकें. Developmental activities that are play based and joyful to the learners and resource required for carrying out these activities are essential part of the learning environment. Means learning environment उस तरह का हो जहाँ पे बच्चों को खेलने का और जॉयफुल एक्टिविटी सीखने का वहाँ पे, यानी कि लोग वहाँ पे प्लेजर महसूस कर सकें, हैप्पीनेस महसूस कर सकें. लर्निंग एनवायरनमेंट का ये भी एक प्रिंसिपल है. Play is important means for the child physical, social and emotional and cognitive development. Means playground proper होना चाहिए. Children develop and learn best in environment where they feel safe, physically comfortable, loved and respected. So ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ बच्चे अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करें, कंफर्टेबल एंड एक लविंग एनवायरनमेंट हो. टीचर एंड बच्चों के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन हो ताकि टीचर बच्चों को समझ सकें. टीचर शुड चाइल्ड आल्सो बी एबल टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स इफ द एनवायरनमेंट इज कॉर्डियल एंड रेस्पेक्टेड टू. वो खुद भी अपने आप को सम्मानित महसूस करें उस पर्टिकुलर प्लेस पर. तो लर्निंग एनवायरनमेंट के दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स. The governing principles for providing the child the freedom is in the learning environment may be following. जो गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं जो बच्चों को एक फ्रीडम देते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट में, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं. जैसे चाइल्ड्स इनर ड्राइव एंड क्यूरियोसिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड. लर्निंग एनवायरनमेंट में टीचर या जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उस तरह की व्यवस्था करे कि बच्चे की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो सके. चाइल्ड शुड बी सेट एंड पेस फॉर हिज एंड ओन लर्निंग. वो बच्चे अपना खुद भी अगर सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट हो. मीन्स इंडिविजुअल लर्निंग भी हो, पीयर लर्निंग भी हो, ग्रुप लर्निंग भी हो.
Everything has to be interpreted from the child's point of view and not from the adult point of view. Means learner centric environment होना चाहिए. Freedom has to be channelized through proper guidance. Freedom तो हो but proper guidance time to time भी होनी चाहिए. The freedom for the child to play with the material should be proceed by the knowledge of the correct use of material. Material हम कई बार बच्चों को दे देते हैं लेकिन उनका कैसे यूज करें प्रॉपर, उसमें प्रॉपर टीचर की मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए. एनवायरनमेंट मस्ट बी सेफ फॉर द चाइल्ड. ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के लिए सुरक्षित होना चाहिए. दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस डिस्कशन. द व्हाट आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट. एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट की तरफ से आप देखेंगे कि जो स्पेस है वो प्रॉपर हो, यानी कि जहाँ पर हमारी बुक्स रखी जा सकें, आर्ट्स एक्टिविटीज हो सकें, टॉयज गेम्स ये सब हो सकें, एंड जो इंडोर आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर हो सकें. जो लर्निंग मटेरियल्स हैं उनको हम कहीं सेफली रख सकें. एंड ऑफर एरियाज ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर सॉलिडरी पैरेलल, यानी कि और ग्रुप प्ले जहां हम कर सकें उस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए. रिगार्डिंग वॉल्स भी जो है वो अच्छा जो सेमी ग्लॉस पेंट नहीं होना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ना हो, बहुत ज़्यादा चमकीली दीवार ना हो. कलर आपके बहुत ही वो होने चाहिए जो नेचुरल लाइट्स देते हों, लाइक ब्लू, ग्रीन एंड लीलेक और नेचुरल कलर्स रूम में होने चाहिए. दूसरा जो वुडन है वो भी बच्चों के लिए जो प्लास्टिक का हो या लकड़ी का हो, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए. Then storage facilities, classroom and other room need to have adequate storage facilities. Storage space that children may use on their own need to be accessible to the children. बच्चों के लिए वो accessible हों जो आपने storage बनाया है. Shelf साफ, neat and clean होनी चाहिए जहाँ material रखा जा सके. And each child may have an area बेयरिंग, यानी कि जो भी है उनका अपना खुद का एक पर्टिकुलर सेल्फ, पर्टिकुलर वो होना चाहिए बॉक्स. सेल्फ में भी लेबल्ड विद पिक्चर्स सो दैट चिल्ड्रन नो वेयर टॉयज एंड मटेरियल्स आर. तो बच्चों के लिए प्रॉपर जो सेल्फ्स हैं वो लेबल्स होने चाहिए, कौन सी सेल्फ्स किस बच्चे की और उसमें क्या क्या मटेरियल रखा हुआ है. रिगार्डिंग फ्लोर, द फ्लोर शुड बी स्टेन एंड फायर रेजिस्टेंस, easy to clean and maintain. It should not be slippery because बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनको चोट लग जाएगी. Windows need to be clean with clear sight but have grills mesh so as to avoid accidental fall. Curtains with children's motifs may be used but they are to be washed regularly because they collect dust. जितने भी कर्टन्स होते हैं डस्ट उन पे जाती है, इसलिए पहले तो डस्ट फ्री कर्टन्स रखे जाएं और उनको टाइम टू टाइम रेगुलरली धुले जाएं, वो वॉश किए जाएं वो. Then make choice of select activity on their when the classroom environment is well organized, you will be able to notice that children act the following ways. मेक चॉइस द सेलेक्ट एक्टिविटीज ऑन देयर ओन. बच्चों को अपने आप उस एक्टिविटीज चुनने की दीजिए. यूज मटेरियल अप्रोप्रिएटली एंड क्रिएटिवली वंस दे एंटर इन देयर इंटरेस्ट एरिया एंड हेल्पिंग इन कीपिंग द रूम टिडी. यानी कि बच्चों को अपने आप तो उन्होंने वो एक्टिविटी सेलेक्ट किया, मटेरियल उनको दीजिए, लेकिन मटेरियल को भी अपनी प्रॉपर निगरानी में उनको देने की ज़रूरत है. इन्वॉल्वमेंट इन एन एक्टिविटी इज सस्टेन्ड. प्ले और वर्क इज मोर सेटिस्फाइंग. सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन इज एनहेंस, यानी कि बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए. तो ये बेसिकली दीज आर द डिस्कशन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट. दिस आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट आल्सो हैविंग दिस लर्निंग मटेरियल, मीन्स किस तरह का मटेरियल क्लासरूम उसमें होना चाहिए. तो वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हो, दूसरा कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो, और जो उनको प्रॉपर नॉलेज भी दे रहा हो. इस तरह का मटेरियल हमें यूज करना चाहिए. एज ए टीचर, what material we should select? The following point must be considered while selecting the material. The material should be appropriate for the children age level.
appropriate for children level of development, abilities, needs, and interest, encourage children's participation and involvement, simple in form and use, durable and safe, versatile, though versatile enough to unfold creative and this inventive potential of children. Some material that stimulate active learning are given below. जो मटेरियल कुछ अपने आप भी स्टिमुलेशन देता है, जैसे आपने देखा कलरफुल अगर ग्लास पीस हैं या कलरफुल आपके स्टोन पीस हैं, तो वो उनकी शेप, उनकी शेप, उनकी जो कलर, उनका डिजाइन, वो that also stimulate to learn. So object used in daily life like buckets, pots, pans, brooms, dustbin, watering can etc. ये कलरफुल होंगे तो बच्चों को एक्टिवेट करेंगे लर्निंग के लिए. Materials such as shells, pebbles, stones and sticks, sand, water, clay. Material for carpentry and other craft like wooden box, solves material that exercise small muscles and develop psychomotor like buttons, bead, etc. तो ये लर्निंग मटेरियल जो आपके बच्चे में ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके, उस तरह के लर्निंग मटेरियल हमें अपने बच्चों के लिए लेने चाहिए. अब टीचर कैसा हो उसके लिए आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट में, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर. द रोल ऑफ द टीचर इज टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस टू द चाइल्ड. उसमें वो कैपेबिलिटी हो कि वो कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस प्रोवाइड करा सके. ऑब्जर्व द चाइल्ड एंड प्रोवाइड इनडायरेक्ट सपोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अराउज चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी एंड दिस थिंकिंग स्किल्स. रेस्पेक्ट चाइल्ड फ्रीडम एंड एबिलिटी टू मेक चॉइस फॉर हिम और हरसेल्फ. Identify any development or learning problems and plan a work of action to help the child. So these are the basic qualities should be there in the teacher for ideal learning environment. Facilities and equipment, ये बार बार वही चीज़ है कि किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए स्कूल में. ब्राइट, सेफ, वेलकमिंग क्लासरूम होने चाहिए. फर्नीचर मींट फॉर चिल्ड्रन. डिस्प्ले ऑन द वॉल, चॉकबोर्ड एंड फेल्ट बोर्ड. बुक्स एंड टीचिंग एड्स. स्टोरेज स्पेस प्रॉपर होना चाहिए. इंडोर प्ले एरियाज होने चाहिए जहाँ पर टॉयज एंड गेम्स अवेलेबल हों. स्पेसियस फेंस प्लेग्राउंड होना चाहिए विद स्विंग्स, स्लाइड, सैंड बॉक्स. प्ले हाउस इक्विपमेंट फॉर दिस क्लाइंबिंग, क्राउलिंग, राइडिंग, ट्राईसाइकिल. ये जो आपके जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो होने चाहिए प्लेग्राउंड में. चिल्ड्रंस का वॉशरूम प्रॉपर हो. रीडिंग कॉजी कॉर्नर होना चाहिए. दिस सैंड पिट और शैलो पूल्स होने चाहिए. हाउस प्ले एरिया एंड डिशेस एंड अप्लायंसेस, किट्स फॉर गार्डनिंग. ये सब भी होने चाहिए ताकि बच्चे उसमें खुद भी इन्वॉल्व हो सके. मैनी मोर थिंग्स लाइक ब्राइटली कलर्स, रग्स, मैट्स, यूटेंसिल्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा कैन बी एडेड टू द लिस्ट. स्पेस किस तरह का होना चाहिए? द स्कूल बिल्डिंग should have adequate lighting, temperature control and sound absorbing facilities. Be reasonably cleaned and well maintained. Have ample indoor space and adequate furnishing. ये भी proper होनी चाहिए. Equipment, some of the essential equipment of a preschool are, जैसे furniture के बारे में बात करें, the furniture should include those meant for storage of toys and other materials. ऐसा furniture हो जो टॉयज और अदर मटेरियल को सेफली रखा जा सके इसमें. लो हाइट होना चाहिए. कलरफुल टेबल एंड चेयर्स फॉर चिल्ड्रन. एडेप्टिव फर्नीचर सुटेबल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. अगर बच्चा डिसेबल्ड है तो उसके लिए भी एडेप्टिव फर्नीचर होना चाहिए. वुड वर्क बेंच, सैंड, वाटर टेबल होना चाहिए. फर्नीचर फॉर रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट सो दैट चिल्ड्रन में टेक रेस्ट. उस तरह का फर्नीचर होना चाहिए बच्चे को अगर थकान हो तो वो ही और शी कैन टेक रेस्ट. बुक्स भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए एज के अकॉर्डिंग. डेवलपमेंट एंड एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन. बुक्स आर टू बी ऑर्गेनाइज इन ए रीडिंग सेंटर फॉर चिल्ड्रन टू यूज फ्रीली. बुक्स एंड लैंग्वेज मटेरियल में बी रोटेटेड अमंग द चाइल्ड. किताब एक के पास नहीं, सबके पास जानी चाहिए वो. द वाइड सिलेक्शन ऑफ बुक्स related to plant, animal, nature, this pupil of various races and cultures, fantasy, etc. may be included.
एडिशनल लैंग्वेज मटेरियल, उस पर्टिकुलर रीजन की जो रीजनल मटेरियल वो भी होना चाहिए, पोस्टर, पिक्चर्स, दिस फ्लैनल बोर्ड, डिस्प्ले, पिक्चर्स एंड गेम कार्ड, रिकॉर्डेड स्टोरीज, सॉन्ग, पोएम्स एटसेट्रा भी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए होने चाहिए। देन इक्विपमेंट फॉर आर्ट, इक्विपमेंट फॉर म्यूजिक, ड्रामेटिक प्ले, इक्विपमेंट फॉर प्ले, टीवी, वीडियो, कंप्यूटर्स, ये सब भी प्रॉपर होने चाहिए। मीन्स आर्ट्स के लिए जो जो भी चीज़ ज़रूरत है, पेपर, पेंट, कलर, ये सब होने चाहिए। म्यूजिक के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर हैं, जिसमें फोक सॉन्ग हो सके या सॉन्ग इन डिफरेंट लैंग्वेज में हो सके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुटेबल होना चाहिए फॉर प्री प्राइमरी लेवल। These are the basic equipment which are very required for pre-primary school. Next, facilities and equipment, list of desirable equipment. ये NCERT ने 1991 में कहा है कि एक पेडलिंग कार हो, ओल्ड टायर्स हैंग ऑन द फ्रेम हो, लार्ज पाइप अबाउट 8 फीट का, लॉन्ग सेंटीमीटर इन द ग्राउंड फॉर स्क्रीपिंग थ्रू इट, उसमें से निकलने के लिए, नेस्टिंग फ्रेम्स एंड प्लैंक्स हो, ट्रायंगुलर सेट्स विद प्लैंक्स हो, वेडिंग पूल और बिग टब होना चाहिए, फ्लोटिंग टॉयज, रबर डक्स, बोट्स हो, पुल एंड पुश कार्ड हो, ए सैंड पिट भी एक होना जरूरी है, बिग सैंड ट्रे विद 8 to 10 चिल्ड्रन कैन प्ले टूगेदर, एंड दिस थम्बलर, स्मॉल बकेट्स फॉर सैंड प्ले। इस तरह ये एनसीईआरटी ने कहा कि एक पर्टिकुलर प्ले स्कूल में ये 10 चीजें होनी जरूरी है फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सेफ्टी प्रैक्टिस के लिए जो इंडोर हैं और आउटडोर जो दो एक्टिविटी होती हैं, इंडोर में प्रोटेक्टिव कवर ऑन इलेक्ट्रिकल आउटलेट, जो भी इलेक्ट्रिकल आउटलेट वो प्रॉपर कवर हो, फर्नीचर बहुत ज़्यादा हैवी ना हो ताकि बच्चे उसे खींच ना पाएँ, हॉट स्टोर और फायर प्लेस मस्ट बी अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन रीच, मेडिसन्स और ये जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स है ये भी सेफ जगह पर होना चाहिए, और मैट एंड रग्स हैं वो इस तरह के ना हो कि वो स्लाइड करें ताकि बच्चे गिर ना जाएं, ओपन टेरेस हो लेकिन प्रॉपर कवर हो, फ्लोर शुड नॉट बी स्लिपरी, वाटर ऑन फ्लोर शुड बी इमीडिएटली वाइप्ड, अगर पानी है तो उसको इमीडिएटली साफ करना है, चिल्ड्रन शुड नॉट बी लेफ्ट अनसुपरवाइज, बच्चों को अनसुपरवाइज नहीं छोड़ना है, आउटडोर में टूल्स दैट कुड हार्म चिल्ड्रंस लाइक सीजर्स, इन सबको बच्चों से दूर रखना है, वॉकवे एंड स्टेयर शुड बी नॉन स्लिपरी, प्ले इक्विपमेंट शुड पोज नो थ्रेट ऑफ हेड डिस एंटरप्रेमेंट और फिंगर एंट्रैपमेंट, यानी कि ऐसा कुछ ना हो जिससे बच्चे के सिर में, हाथ पैर में, इनमें चोट लगे, fall zones under play equipment should be have sufficient this cushioning, children should not be left unsupervised, ये भी important है कि चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, child should not be left unsupervised. So this is next unit, play and early childhood education. इसमें हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले को जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले को जानेंगे, देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले फॉर टीचिंग इन प्री स्कूल चिल्ड्रन, इसको भी जानेंगे। जस्ट हैव क्विक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले है क्या? बेसिकली आप जानते हैं प्ले इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, मोटर, साइको, इवन कॉग्निटिव डेवलपमेंट आल्सो टेक प्लेस इन प्ले activity. So the major characteristics of play as follows: children are involved. Play उसको कहते हैं जहाँ बच्चे involve हैं. Play is instinctive. No child is trained to play. It occurs naturally through जो instinct motivation, अपने आप को सीखता है बच्चा. Play is a voluntary. There is often no definite purpose in play. Play is spontaneous. So let children should enjoy. Children often express to urge to create and explore while playing. Children may play alone or with others, जो भी जिस तरह का भी प्ले है, और इससे क्या होता है कि इससे आपकी मसल्स इंक्रीज होती हैं, बच्चे की एज प्रॉपर ग्रोथ होती है। प्ले इज नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड फीलिंग, थॉट एंड एक्सपीरियंसेस,
It is spontaneous expression of child's life. Play helps in preparation for life. So play basically preparation of life के लिए बहुत important है at the childhood age. टाइप्स ऑफ प्ले, किस टाइप के प्ले हो सकते हैं? एक है फ्री प्ले, बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी खेल रहा है विदाउट एनी, कूद रहा है, डांस कर रहा है। ऑर्गेनाइज प्ले, बेसिकली ऑर्गेनाइज प्ले सम रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होता है जो स्कूल्स में होते हैं। प्ले कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। प्ले फॉर फिजिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, जो अपने खुद के विकास के लिए फिजिकल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। सोशल प्ले होते हैं जो किसी, जैसे आपने देखा होगा किसी एपिक को या किसी छोटे छोटे पार्ट्स प्ले करने होते हैं किसी रोल मॉडल के, वो सोशल। कंस्ट्रक्टिव प्ले, जिसमें कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करे, बच्चा कुछ सीखे। ड्रामेटाइज, जो रामलीला हुआ या इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसमें वो ड्रामेटाइज। एंड कुछ प्ले जो होते हैं वो गेम्स से होते हैं, जैसे कुछ हमारे पास ऐसा आपने देखा होगा लूडो है या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके साथ वो प्ले करते हैं। तो दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ प्ले। इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले क्यों इम्पोर्टेंट है? यू नो द प्ले इज इम्पोर्टेंट फॉर normal growth of body and mind, and also emotional, moral and social development. It also helps in cognitive development of the children. The role of play in the development of skill leading to social competency is receiving considerable attention. Early childhood educators have recognized the need of play activities to be an integral part of preschool curriculum. द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले अलॉन्ग डिफरेंट डायमेंशंस। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, थेरेपी थ्रू प्ले। सो दीज आर द बेसिक एरियाज फॉर दैट प्ले इज इम्पोर्टेंट। वाई डू प्ले स्कूल टीचर्स नीड टू एनकरेज प्ले? टीचर को क्या जरूरत है? बिकॉज you know the all-round development is based on play and group activity. So teacher has to encourage, because play foster physical development and helps in developing control over body, helps in exploration, developing thought process and creativity, provides social training and develop language skills, helps in cognitive development, प्रोवाइड्स इमोशनल ट्रेनिंग। सो प्ले इम्पोर्टेंट है, इसलिए टीचर को एनकरेज करना चाहिए बच्चों को टू हैव एक्टिव रोल इन प्ले। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड प्ले, वेरियस थ्योरीज प्रेजेंट डिफरेंट व्यू ऑन प्ले। देयर आर, एक है आपका प्ले एज थेरेपी। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि प्ले एक थेरेपी के रूप में काम करता है। जॉन जीरोम ब्रूनर कहते हैं कि प्ले इज ए रिहर्सल एंड प्रिपरेशन, क्योंकि लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए जो प्ले है को रिहर्सल और प्रिपरेशन के रूप में काम करता है। प्ले इज सेंसरी लर्निंग, ये मारिया मोंटेसरी ने कहा है, इसलिए मोंटेसरी ने अपने स्कूल्स में प्ले को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। जीन पियाजे, हु वाज द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट एंड ही हैज डन द मैनी रिसर्च ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी. He believes that play for intellectual development, and this Vygotsky, he was a Russian psychologist, believes that play as social development. तो social development के लिए play बहुत important है. Development of social skills through play. There are many social skills we discussed in previous days. So play से हम बहुत सारी social जो अपनी स्किल्स हैं उनको भी, जैसे अनऑक्युपाइड बिहेवियर्स, सॉलिसिटरी और इंडिपेंडेंट प्ले, ऑनलुकर प्ले, पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले। तो ये इस तरह के जो प्ले हैं जो बच्चे में सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं या लर्निंग टूगेदर होते हैं, या हेल्पिंग नेचर इनमें आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वो है एट्रीब्यूट्स है वो उनमें डेवलप होता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस फॉर सोशल प्ले। नेक्स्ट, द प्ले बेस्ड एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट. चिल्ड्रन कैन आल्सो लर्न टू शेयर विद अदर चिल्ड्रन. आपने देखा होगा जब हम प्ले ग्रुप में एक साथ बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं.
फॉलो डायरेक्शंस, अगर ग्रुप है तो एक दूसरे की डायरेक्शंस, एक दूसरे की अर्ज को सुनते हैं. कॉपी एंड क्रिएट ए visualize an object. Children can play and learn simultaneously if teacher organize informal activities like arranging cells, stones, bead, etc. as per their color, shape, size, यानी कि उनको distinguish करना हो, वो भी एक play में आता है. Let us discuss the kind of play appropriate for different stages. 3 years अगर ओल्ड चाइल्ड है उनके लिए क्या गेम होना चाहिए, 4 year ओल्ड साइड है उनके लिए क्या गेम होना चाहिए, 5, यानी कि एज बेस्ड जो गेम है वो डिसाइड करना है. हम एज ए टीचर हमें डिसाइड करना है कि बच्चों को 3 साल के बच्चों को कौन सा गेम हो, 4 साल के बच्चों को कौन सा गेम हो, 5 साल के बच्चे को कौन सा गेम हो. एंड दोज गेम्स विच आर रिक्वायर them to express themselves in word and listen and follow instructions like language games, memory games, etc. are they appropriate during this stage. तो हर बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी और उसके एज के अकॉर्डिंग उसको गेम सेलेक्ट करना वो हम टीचरों का काम है. Organizing play. A teacher role is very important for organizing the play in preschool. So preschool institutions have also need to ensure the following for play related activities. एक तो room for indoor activities should be spacious for easy movement of the children, यानी कि प्रॉपर रूम हो जिसमें बच्चों को आराम से खेलने के लिए प्लेस मिले और उसमें रैक्स हों, अलमीराज हों जिसमें टॉयज रखे हों. Teacher should check material and equipment for safety before giving the toys and material to the child. They should ensure they are safe. Teacher should make children aware of risk involved. अगर किसी पर्टिकुलर में कोई रिस्क हो सकता है तो उसको टीचर पहले अवेयर करेंगे कि इनको पास नहीं जाना है, इनको टच नहीं करना है. The teacher should ensure maximum involvement of the child by deliberating this struggling game, material and items for play, so as to encourage interaction. Playground should have equipment that are safe for children, like swimming and soft rubber tires for seat instead of wooden ones. जो आपने देखा वो टायर्स वायर्स में कई बार कीलें निकली होती हैं, वायर्स बाहर होते हैं, तो इसलिए हमें उनको भी बताने की जरूरत है कि चिल्ड्रन शुड टेक केयर ऑफ दैट. The features characterizing the developmental stage in which children are need to be considered while planning activities, including play for preschool children. तो इस the following point may be considered जब हम कोई भी play organize कर रहे हैं as a teacher, कुछ important points हैं that has to be taken care. The young children learn best in small groups because it's eliminate long waiting periods. आपने देखा अगर आपने को बहुत बड़ी टीम बना दी तो everyone will not have chance. So छोटे छोटे ग्रुप बना करके आप एक्टिविटी कराइए. Young children's attention span on any concentrated efforts last for about 1 minute more than their age. So introduce activities of shorter duration and those that involve only a few concept at a time. मीन्स छोटे छोटे ग्रुप बनाइए और छोटे छोटे टाइम के लिए आप वो गेम या वो एक्टिविटी करिए. कीप सिंपल गेम्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गेम मत बनाइए क्योंकि सिंपल गेम में सबको मौका मिलता है. वॉच फॉर रेस्टलेस एंड स्टॉप्स व्हेन इंटरेस्ट डिक्रीज. अगर बच्चों का गेम में उनका मन थोड़ा हट रहा है या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो आप गेम को चेंज भी कर सकते हैं, उस गेम को बंद करके कोई दूसरी एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं. डू नॉट इंसिस्ट दैट एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेट इन एवरी गेम, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक और उन बच्चों का इंटरेस्ट और अलग अलग हो सकता है, इसलिए रिकॉग्नाइज करना, उनको प्रॉपर इन्फोर्स करना उन पर्टिकुलर गेम में, ये हम टीचरों का काम है. ऑर्गेनाइज गेम विदाउट विनर एंड लूजर. कोई खेल ऐसा हो जिसमें सभी जीतें, सबको मौका मिले, तो ऐसा गेम ना हो कि जिसमें हार या जीत का सवाल हो. गिव ईच चाइल्ड इज ए स्पेशल टास्क. सबको स्पेशल टास्क दीजिए. फ्रेज करिए, रिवार्ड करिए उनको, ऐसी क्रिएट सिचुएशन करिए जिसमें कोऑपरेटिव बिहेवियर उनको ज़रूरत हो. कंटिन्यू टू लेट चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस द जॉय
ऑफ डूइंग एंड अचीविंग मास्टरी इन द देयर ऑन टाइम। वो जिस भी गेम बुक को पसंद करते हैं उनको एंजॉय करने दीजिए, ताकि सो दैट दे मे एंजॉय देयर ऑन टाइम। टीचिंग थ्रू प्ले, यू नो द प्ले वे मेथड इज वेल नाउन, और उस प्ले वे मेथड से बच्चों को बहुत सीखने का मौका मिलता है। जॉन डीवी हैज क्रिएटेड द प्ले वे मेथड। So there are certain principles like as play is instinctive and enjoyed by children. Children do not feel learning as burden. बच्चों को burden नहीं लगना चाहिए. With their voluntary participation, learning is facilitated. During play, learning becomes real, interesting, and easily adjustable to individual needs. During play, the environment is informal, hence, children have neither fear nor stress while learning. Hence, playway method help in developing confidence in learning. Learning take place through doing. Learning should be suited to the needs and interest of the children. Ample opportunities should be provided to the children for self expression. प्रॉपर उनको टाइम दीजिए ताकि वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर सकें। लर्निंग शुड बी रिलेटेड टू लाइफ सिचुएशंस एंड नॉट टू बुक अलोन। रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ उनको जोड़ने की ज़रूरत है, बुक के साथ बुकिश नॉलेज ही काफ़ी नहीं है। उनको वो एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो अपने लर्निंग बाय डूइंग हो सके और उनको ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकें। लेट अस डिस्कस द प्ले वे एक्टिविटीज। जैसे ड्रामेटिक प्ले है, इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन आस्क टू प्ले डिफरेंट रोल विद और विदाउट यूजिंग प्रॉपर दिस लाइक स्टिक्स टॉय। उसमें बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट रोल करने होते हैं जिसमें चेंज भी होता है। आज ये नहीं कि एक बच्चे को एक ही एक्टिविटी करनी है, कुछ बच्चों को एनिमल्स देते हैं, कुछ बच्चों को बर्ड्स देते हैं और उनको स्टोरी फ्रेमिंग भी कराते हैं हम, या स्टोरी उनको सुनाते हैं। गेम्स कार्ड भी एक वे है जिसमें गेम्स कार्ड की वजह से की हेल्प से प्रिपेयर द टेक्स्ट लाइक नंबर्स, अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, इवन बिल्डिंग्स बनवाते हैं हम लोग उनसे। छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं इसके गेम्स के। दिस अम्यूजमेंट गेम्स children play a passive role but get enjoyment from watching or listening to others। उसमें क्या होता है, एक ऑडियो या वीडियो चला देते हैं जिसमें उसको देखते हैं और बच्चे विजुलाइज करते हैं कि वो उसका पार्ट है। लुकिंग एट पिक्चर्स भी दिखाते हैं बच्चों को एजुकेशन पर्पज के लिए, ताकि वो डिफरेंट पिक्चर्स को विजुलाइज कर सकें, उनके कलर को एंजॉय कर सकें और वो फर्दर नॉलेज उनकी एनहेंस हो सके। स्टोरीज, पोएम एंड म्यूजिक। चिल्ड्रन लाइक टू लिसन टू स्टोरीज, सिंपल स्टोरीज विद सिंपल जो वर्ड्स हैं, सिंपल जॉयफुल स्टोरीज उनको सुनाई जाएं, राइम सुनाए जाएं, डांस के साथ सुनाया जाए उनको, डिफरेंट डिफरेंट इलस्ट्रेशन के साथ। सो टीचर शुड सिंग सॉन्ग, रिसाइट राइम्स एंड पोएम्स विद देम, इवन उनको साथ रिपीट भी कर सकते हैं। प्ले बेस्ड एक्टिविटीज, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट होता है, इससे सेंसरी डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्ले इज इम्पोर्टेंट फॉर motor development, sensory development, cognitive development, or even learning. For further learning, it is also important. So just I am skipping because play based activities, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, चूंकि आपने कहा रीजनल लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट हो जाती है उसको अपने ऑन लर्निंग के लिए। सो प्ले एक ऐसा है जिसमें अपनी ऑन मदर लैंग्वेज या अपनी रीजनल लैंग्वेज डेवलप होती है। तो इस तरह की एक्टिविटी करी जाए जिसमें वोकेबुलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप किया जा सके। एंड सोशल स्किल आल्सो कैन बी डेवलप्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्ले, जिसमें एक सर्किल में आप बना लीजिए और दे शुड बी आस्क फॉर देयर नेम एंड देयर फादर्स नेम और फैमिली बैकग्राउंड। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसका सोशल डेवलपमेंट का। This is Unit 3, Use of ICT and Multimedia Approach in Early Child Education. Go quickly. So इसमें Adopting Multiple Media and Approach in Early Child Education को पढ़ेंगे और What is the use of ICT in Early Child Education? So multimedia approach, since we are living in digital era, so we all are aware what is multimedia approach. So ICT is an umbrella term that include
Any communication device or application encompassing radio, television, cellular phone, computer, network, hardware, software, satellites, ये सब क्या है? ये these are the parts of ICT. So ICT is today important because it's provide easy access to information and enable data processing, sharing, and communication. It is bridging the gap between the information haves and have nets as it take information to mass quickly. ये बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचती है. रेडियो एंड सेल फोन्स आर गुड एग्जांपल टू डिसरिगार्ड. रेडियो से इंफॉर्मेशन या सेल फोन से आप किसी को फ़ोन कर लीजिए, ये इंफॉर्मेशन वन एंड से सेकंड एंड तक इजीली पहुंच जाएगी इन वेरी शॉर्ट टाइम. सो टुडे पीपल from all sections of the society are getting increasingly connected through cell phones. Many countries around the world are actively harnessing the potential of ICT in various sectors like health, education, communication. इन सब में ICT यूज हो रही है properly. It is strengthening formal and non-formal as well as informal practices. While ICT is used in informal setup for classroom situation, आपने देखा होगा अभी क्लासरूम में हम लोग भी ICT का प्रॉपर यूज करते हैं फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द child. So multimedia is combined use of several media to present the content. Content may be different media like video, still visual, audio, animal, and text. Multimedia facilities could be thus a resource to support teaching and learning. In a preschool setting, technology may not be used as for self learning but supplement and the experience provided by the teacher. So ICT and multimedia approach अभी चूंकि चाइल्ड स्कूल बच्चे छोटे हैं तो उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने में, पिक्चर्स दिखाने में या डिफरेंट काइंड के राइम्स, सॉन्ग, इन सबको डिस्प्ले करने के लिए आईसीटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. सो व्हाट इज द यूज ऑफ आईसीटी इन अर्ली चाइल्डहुड? तो फर्स्ट है द हाई पेनिट्रेशन रेट्स ऑफ मोबाइल फोन्स एंड रेडियो इज इंक्रीजिंग देयर accessibility among the all section of pupils. टेलीविजन इज आल्सो विद इन द रीच ऑफ मैनी स्कूल्स. हर स्कूल में आपने देखा हो टेलीविजन है. सीडी एंड ऑडियो वीडियो जो गैजेट्स हैं वो हैं जिसमें बच्चों को टाइम टू टाइम डिफरेंट जो प्ले वे मूवी है या पिक्चर्स हैं या स्टोरीज हैं, सॉन्ग्स हैं, वो सब दिखाए जा सके. द कंप्यूटर हैज़ नाउ बिकम ए कॉमन टूल फॉर एजुकेशन ऑफ प्री स्कूल. चूँकि कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के लिए प्रिंट निकालते हैं, प्लेन प्रिंट, और उनको देते हैं आप इनको कलर कीजिए. तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है. स्टडीज रिवेल दैट अर्ली स्टार्ट विद कंप्यूटर्स माइट क्रिएट ए न्यू अप्रोच टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी which over time will influence traditional and cultural patterns. Children should be able to experience ICT as a tool with vast possibilities for communication in 21st century. The teachers therefore need to decide whether readiness for 3 hours reading, writing, and arithmetic can be done better with the help of traditional chalk or ICT. तो ये टीचर को आज चूज करने की जरूरत है कि हम लोग वही ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड को यूज करें 3 आवर्स डेवलप करने के लिए, या आईसीटी बेटर ऑप्शन हो सकती है. बट आई थिंक इट शुड बी द ब्लेंडेड मोड. ICT for activities supplementing teaching. Preschool teachers are required to develop abilities to operate ICT and use it skillfully for preschool education. Some preschool teachers may have little experience of using computers. These teachers need to be trained in using computers and in using the internet. So अगर टीचर को ही इंटरनेट या कंप्यूटर नहीं आते हैं तो ये ICT that will be the waste for them. So proper training is required for using the ICT for children in early child school. So this is the about block 4 of MES 084. So this is from my side. If you have any question, so may ask. Otherwise, we will meet on Monday. But as I share with you, we will try to complete first our previous 2 left blocks
then we will go for further MES 085. Okay, so have a good night to all. Thank you.